But the best part is the sharks are, I mean, they're very good, like just talking like us, we are talking. आपने पूरा एक मार्केट बनाया अवेयरनेस क्रिएट करके, और आगे चल के फिर और कंपनीज भी आ जाएं। अवेयरनेस आपने सारा क्रिएट किया, फिर आगे चल के वो फिर आपका जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर लें। And even till you go air, they don't tell you कि आप एयर पे भी जा रहे हो, वो भी आपको 2-3 दिन पहले ही पता लगता है, just to get prepared. The best part is that when you share your experience and your things about your brand, उनके जो छोटे छोटे फीडबैक्स भी होते हैं वो हम लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, एक बूस्ट करने के लिए, secondly to implement in your in your businesses and take your business to the next step. There's a lot of difference in the people, in their thinking, in their wearing. So ऐसा नहीं है कि hurdles नहीं आते, but yes, हम धीरे धीरे अपने हर एक्सपीरियंस से और ज्यादा सिस्टमैटिक होने की कोशिश करते हैं. बहुत ऐसे कस्टमर्स है जो प्रोडक्ट अबंडेंट कार्ट में डाल के छोड़ देते हैं बिकॉज दे हैव मल्टीपल क्वेश्चंस इन देयर माइंड, और द प्रोडक्ट इज रियली गोइंग टू fit them or give them the same, the same experience what they are thinking or not. नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मनवीन। शी इज़ द फाउंडर ऑफ पिंक पोल्का। पिंक पोल्का शार्क टैंक में रिसेंटली फीचर हुआ था उनके पिछले सीज़न में, और उसके बाद से उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है और एक ऐसे इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, एक ऐसा नया इंडस्ट्री वो क्रिएट कर रहे हैं जो आज से पहले इंडिया में नहीं था। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है मनवीन से, उनकी जर्नी के बारे में, क्या डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस किए और कैसे उन्होंने इस बिज़नेस को फैमिली रन बिज़नेस होते हुए भी एक प्रोफेशनल तरीके से रन किया है। बहुत सारे इंसाइट्स हैं, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस पॉडकास्ट के अंदर। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। शार्क टैंक का एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस था आपका, वो एक बार आप शेयर करना चाहो तो? It was a very good experience overall. Like they take somewhere around 8 to 9 months in all the procedures. We have different rounds and different kind of informations. They keep on asking the questions, different kind of teams. But yes, the positive part was जब हम वहाँ जाते हैं final round के लिए, and after 2-3 days before, they actually prepare you कि आप स्टेज पे जाओगे, आपको यहाँ खड़ा होना है, आपको सैंपल ऐसे देने, so that ways we get a good idea of the stage wherein we get confident to go there. But everything is streamlined and everything is organic there. Once the camera starts, it's not it's not recorded, it's not edited. But the best part is the sharks are, I mean, they're very good, like just talking like us, we are talking. So you ask a question, they give you time to answer. Then if they have any query, then they ask the questions and they give you a lot of time to explain yourself in that way. So but yes, being there, kahin na kahin back of the mind mein rehta hai that you're on the camera and it will be recorded or something, तो वो थोड़ा थोड़ा होता है, but then after 2 to 3 minutes you just get comfortable. So I think that is why पहली pitch में they prepare you. Once you go ahead with the pitch and the pitch goes well, then everything is good, because वो आपको लगता है कि हाँ we nailed it. उसके बाद तो anyways everyone knows their brand, so the answers are very much organic and you know what you have to answer. But yes, they don't prepare you for the questions, and also it's completely organic in context of your branding and about your brand. So whatever you're actually doing in real in your brand as a CEO, as an owner, as a director, that all is just being answered there. हाँ, मतलब वो चीज़ तो आपने सही भी बोला कि जो फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप पे तो उनको काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन Exactly. अब कैमरा के सामने आके वही चीज़ें बोलना, मतलब वो कि बैक ऑफ द माइंड जब होता है ना कि आप कैमरा में हो, तो वो थोड़ी सी हेजिटेंस आ जाता है. वो तो है ना कि मतलब आप इवन शादी पार्टीज़ में भी देख लो, आदमी नॉर्मल खाना खा रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरामैन आ जाता है तो वो उसका स्मेल फिर आ थोड़ा जाती है. कट जाता है, फिर वो ऐसे ही प्लेट लेके ऐसे ही रखा रहता है उसका कि वो क्या करे, क्या नहीं करे, राइट. वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर शार्क टैंक से ही मतलब थोड़ा-सा और आप डिटेल में बताओ कि ये 7-8 महीने का प्रोसेस है, मतलब जो हम्म. इस पॉडकास्ट को अगर देख भी रहा है और मतलब वो भी चाहता है कि वो शार्क टैंक वगैरह में अप्लाई करे, तो स्टार्टिंग से क्या प्रोसेस था? आपने अप्लाई किया था, फॉर्म फिल किया था? हाँ, सो आप इनिशियली एक फॉर्म फिल करते हो, एंड आई थिंक देन देयर बैक एंड टीम जस्ट गो थ्रू इट. देन दे सेंड अस अ फॉर्म ऑफ अप्रॉक्सीमेट 28 to 29 पेजेस, जिसमें हमारा फर्म का सारा बैकग्राउंड होता है. हाउ यू स्टार्टेड, वेयर यू स्टार्टेड, योर नंबर्स, योर सेलिंग, एवरीथिंग, ऑल द बेसिक डिटेल्स.
हम वो भर के देते हैं। उसके बाद इफ यू फर्दर गेट सिलेक्टेड, देन दे आस्क यू फॉर अ 3 मिनट वीडियो ऑफ योर पिच, जो आप अपने ब्रांड को प्रेजेंट करने के लिए पिच बनाते हो। फिर हम वो भेजते हैं। वंस इट गेट सिलेक्टेड, सो आई थिंक सिलेक्टेड सिटीज में दे हैव अ फिजिकल राउंड, सो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम शार्क टैंक टीम कम्स एंड इज जस्ट सेटअप लाइक अ शार्क टैंक की जैसे 2-3 लोग बैठे हैं। यू गो एंड आप अपना पिच देते हो, आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हो, एंड देन दे कीप ऑन आस्किंग अबाउट योर ब्रांड। सो इट इज जैसे अ काइंड ऑफ अ शैडो। सॉरी। जैसे इंडियन आइडल में सिटी वाले ऑडिशंस हो जाते हैं, उस टाइप का कुछ हो जाता हाँ हो। हाँ, जस्ट लाइक दैट। सो इट्स अ शैडो पिच काइंड ऑफ थिंग। एंड बट इस सब में एक चीज बड़ी एक्साइटिंग है कि दे डोंट टेल यू एनीथिंग। कि आप अगर फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के ट्रांजिशन में आपको सपोज उनको सिलेक्शन में 2 महीने लगे, 2 महीने के लिए एवरीथिंग ऑफ द शार्क टैंक विल बी गायब। यू विल नॉट हैव एनी आप इंफॉर्मेशन दैट आप यू आर मुंबई आ सिलेक्टेड, सकते हो यू आर या नहीं आ नॉट। सकते नहीं बताते वो। हाँ, सो एवरीथिंग इज टोल्ड यू एट वेरी सेम पॉइंट, कि मतलब 2 दिन के बाद आपको यहाँ आना है। दे चेक योर अवेलेबिलिटी एंड देन दे जस्ट से कि आपको इसलिए आना है। एंड इवन टिल यू गो एयर, दे डोंट टेल यू कि आप एयर पे भी जा रहे हो। वो भी आपको 2-3 दिन पहले ही पता लगता है, जस्ट टू गेट प्रिपेयर्ड। बट येस, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। एंड हम अपने ब्रांड्स के बारे में और जानते हैं, हमारे को और इन्फॉर्मेशन आती है, बिकॉज वी ऑल्सो थिंक कि हमें सब पता होना चाहिए, हर इट्स इन बिट्स पता होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन एवर आस्क यू। एंड ऑब्वियसली बीइंग इनटू देयर शूज, दे आल्सो हैव टू इन्वेस्ट, तो उनको भी सारे क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। सो दैट वेज जब उसके बाद यहाँ वाला राउंड होता है, उसके बाद बॉम्बे के लिए राउंड के लिए आपको कॉल आता है। बट ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स टेक समवेयर अराउंड 8 to 9 months टू हैपन। और इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, मे बी फंडिंग वगैरह अगर आपको मिला भी है, तो आप शेयर नहीं कर सकते उसको। नहीं कर सकते आप, बाहर आते ही अंदर से यू कांट इवन डिस्कस विद द अदर। आई मीन जैसे एक दिन में 4-5 राउंड्स होते हैं, तो वो 4-5 अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। यू कांट शेयर एंड इवन टिल यू डोंट गेट एयर, बिकॉज आई थिंक कई बार होता होगा कि कोई एयर नहीं भी जाता होगा। सो इवन इफ टिल द टाइम यू डोंट गेट एयर, यू कांट शेयर और यू कांट पोस्ट और यू कांट पब्लिसाइज दैट यू कम ऑन द शार्क टैंक। तो अल्टीमेटली कैसा फीलिंग होता है वहां पे जब आप शार्क से मिल रहे हो, उन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए हुए हैं, और It's कभी कभी very क्या good शार्क आपसे भी experience. करते हैं थोड़ा सा। Yes. The best part is that when you share your experience and your things about your brand, उनके जो छोटे छोटे फीडबैक्स भी होते हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। एक, बूस्ट करने के लिए। Secondly, to implement in your, in your businesses and take your business to the next step. वो वहां पर बहुत हेल्प करता है। जैसे हमें भी कुछ फीडबैक्स मिले थे, जिसपे अब हमने काम किया, हमने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, एंड वी आर टेकिंग द थिंग्स अहेड। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, and I think that is really helpful for every growing brand to grow their business to the next level. मैं शायद आपको तो ये भी बोला था ना कि आप अब्रॉड के लिए भी प्लान कर रहे थे, यूएस वगैरह के लिए, तो उन्होंने आपको बोला भाई इतना हाँ, स्प्रेड मत करो। राइट राइट। तो हमने एग्जैक्टली अपना वेबसाइट लॉन्च रोक दिया। अब हम इंडिया में ही फिलहाल ग्रो कर रहे हैं। वी स्टिल हैव दैट प्लान इन आवर माइंड, बट लेट्स सी नाउ व्हेन डज इट गेट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये तो परफेक्ट है। और एक देखो, सबसे अच्छा चीज आप एक कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो जो कि पहले नहीं हुआ करता था। राइट। तो एक नया कैटेगरी क्रिएट करना, वो अपने आप में कितना डिफिकल्ट है। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, इवन विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस, हमारी फैमिली के एक्सपीरियंसेस से, और इवन लोगों से बात करके, कि हमारी जनरेशन से पहले वाली हम्म, जनरेशन शायद कभी अपना ध्यान ही नहीं रखती थी। हम्म, अब आई मीन यू कैन टेक एग्जाम्पल, 85% ऑफ द वुमेन डोंट नो देयर ब्रेस्ट साइजेस। हम्म, इसीलिए शायद ब्रेस्ट कैंसर भी इतना फैल रहा है, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है बहुत चीजों की। तो हम सही लोग बात। के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, बट हाँ, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, दो चीजें बहुत अच्छी हुई। वन, द women आर ऑल्सो चेंजिंग टूवर्ड्स द ऑनलाइन शॉपिंग, so they're able हम्म, to read the things. हम्म, Whatever you write in the details, whatever a brand gives the detail, they're able to understand. Secondly, a lot of women who are working are traveling also. So when you travel, you try to explore a different kind of things, because हर जगह का traveling experience अलग होता है, लोग experience अलग होते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हो। सो जब हमने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और हमने उनके फीडबैक्स लिए, तो हमने देखा कि बहुत ऐसी लेडीज है जिन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में पता था, दे वर वेल अवेयर, बट दे डिडंट नो कि इंडिया में भी है। सो हमने ब्रांड बिल्डिंग के साथ साथ कैटेगरी बिल्डिंग करी। अभी भी हम
हर कस्टमर को जिनको ब्रेस्ट साइज नहीं पता होता है उनको साइज चार्ट भेजते हैं, उनके सही साइज बताते हैं, उनके ब्रेस्ट टाइप और साइज के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। हमने अपनी मॉडल से वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, हम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिकॉज आई थिंक कुछ भी नया ट्राई करने के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली किसी एक विमेन को, जो हमें ऐसा लगता है दैट ब्रा इज अ पार्ट ऑफ आर our outfit, and just to get rid of it or just to replace it is a very big thing. So to make women comfortable and make women believe कि आप वो करके भी वैसे ही अच्छे, सुंदर, फिट और बहुत परफेक्ट लग सकते हो is a task, but I'm sure a lot of women are trying to accept these things as well. इसमें एक चीज और हो जाती है ना कि जो मार्केटिंग आपको अवेयरनेस के लिए लग रहा है, मतलब आप एक बार ये मान लो कि आपने पूरा एक मार्केट बनाया अवेयरनेस क्रिएट करके, और आगे चल के फिर और कंपनीज भी आ जाएं, अवेयरनेस आपने सारा क्रिएट किया, और फिर आगे चल के वो फिर आपका जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर लें, तो उसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि जनरली हमने देखा भी ना, अगर फूड डिलीवरी में आप देखोगे, तो जब फूड डिलीवरी स्टार्ट हुआ था तब टाइनी आउल फूड पांडा ने स्टार्ट किया था। वो Right, yes, Food Panda started it. फूड पांडा ने स्टार्ट किया था, उस टाइम उन्होंने अच्छे खासा डिस्काउंट भी दिए। अब 3-4 Zomato. साल अच्छा खासा बर्न किया, डिस्काउंट वगैरह दिए। अब बाद में जोमेटो भी आ गया, स्विगी भी आ गया, तो फूड पांडा टाइनी आउल बंद हो गए, और ये अभी चल रहे हैं। तो See, I tell you आपको लगता है something. कि जो कैटेगरी क्रिएट कर रहा है, मतलब जो कैटेगरी क्रिएट कर रहा है, उसके पास एक बर्डन था अवेयरनेस करने का, लेकिन बाद में जो नए प्लेयर्स आएंगे वो आपकी अवेयरनेस का बेनिफिट लेके वो अपना मार्केट और कैप्चर कर सकते हैं। See, I'll tell you something. One, especially I'll talk about the lifestyle category जिसमें हम अभी grow कर रहे हैं. It's somewhere approximate of 5,000 CR market. But उसमें ये है कि अगर और 2-3 brands अच्छे आ भी गए, तो they can have their own thing. Example आप सैंडपैड का लो, तो शुरू में विस्पर था, स्टे फ्री आया, उसके बाद हमारा ब्रांड आया और ब्रांड्स आए, तो सबकी अपनी एक मार्केट है. बट येस, इस चीजों के लिए आई जस्ट गिव यू सम जस्ट वन, जो हम बहुत ज्यादा करते हैं, इज टू स्टे कनेक्टेड विद योर कस्टमर्स. रिपीट ऑर्डर के लिए, उनकी किसी कंप्लेंट के लिए, उनके और प्रोडक्ट्स के लिए, अपने और कैटेगरी बताने के लिए हमारी एक पूरी टीम है सीआरएम की, जो सुबह 9:30 से शाम को 6:30 बजे तक अप्रोक्सीमेट 80 to 100 कस्टमर्स से रोज बात करती है. एंड ऑल डिफरेंट कस्टमर्स, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, हमने जैसे प्रोडक्ट्स निकाले, हमें भी कुछ इश्यूज आए, हमें भी चीजें समझ में आई. हर चीज की R&D इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज नॉट दैट इजी कि आप चाइना गए, आपको 4 चीजें समझ में आई, आपको लग रहा है ये यूएस में बिक रहा है, यूके में बिक रहा है, मैं इंडिया में भी बेच लूंगा या मैं बेच लूंगी. इट इज नॉट लाइक दैट. इंडिया का मार्केट एवरीवेयर अलग ही है, आप सही कह रहे हो। exactly. So there's a lot of difference in the people, in their thinking, in their wearing, in their body types, in their sizes, depending on the category you're getting the products for. So आपको उन चीजों पे एज अ ब्रांड बहुत ध्यान देना पड़ता है. So it's not that easy to create a brand like that. It is not impossible, but it's not that easy. Thirdly, जो मुझे ऐसा लगता है, जो हमारी कंपनी एक बहुत अच्छी चीज कर रही है, टेकिंग द फीडबैक ऑफ द customers and improvising in a better way and upgrading the products. कि अगर किसी कस्टमर 10 में से 2 कस्टमर ने एक प्रोडक्ट के लिए आपको कंप्लेंट दे दिया, वी इंस्टेंटली थिंक कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या हम इस प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. हमारे ब्रेस्ट कप्स, ब्रेस्ट टिप्स लाने के बाद भी बहुत ऐसे ब्रांड आए, बट स्टिल नाउ जो ब्रेस्ट कप्स और ब्रेस्ट टिप हम बेच रहे हैं इस टाइम, नो वन इन द अदर, आई मीन नो वन एल्स हैव दैट. Even the brands who are saying that they are more premium than us, even they don't have that quality. So keep upgrading yourself and doing and getting more, because आप एक चीज देखो कि एग्जाम्पल मैं अपने ब्रांड की बात करूं, तो बहुत ऐसे प्रोडक्ट है जो हम फर्स्ट टाइम इन इंडिया लाए हैं, जिन्होंने शायद हमें देखकर लाए कि मार्केट ही समझ गई, बट हम जब तक वो लोग वो लॉन्च करेंगे तब तक हम और 4 स्टेप आगे होंगे, जिसके लिए हम और 4 स्टेप काम कर रहे हैं. जो जो जिस टाइम में वो ये काम करते हैं कि वो हमारे लॉन्च प्रोडक्ट्स लाए, हम उतनी देर में और नए प्रोडक्ट्स पे काम कर लेते हैं. So that is the kind of innovations what Pink looks at. So we are not only creating a brand or creating a category, we are trying to create a legacy for everyone. So that is something जो as a brand हम uniquely काम करते हैं, और हमारा thought process जिस तरफ जाता है. तो एग्जैक्टली मैं देख भी रहा था कि आप, आई थिंक आपको 7-8 साल हो चुके हैं इसको स्टार्ट हाँ किए जी, हुए। we started in 2017,
बट विथ सैनिटरी पैड्स एंड पैंटी लाइनर्स। और धीरे धीरे हमने अपने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, और ये वाली कैटेगरी हमने 2019 एंड में स्टार्ट करी थी। उसमें भी एक एक प्रोडक्ट ऐड करके, उसके बाद उसके वेरिएशंस और कलर्स धीरे धीरे ऐड करके हमने अपनी ये वाली कैटेगरी को ग्रो किया है, लाइफस्टाइल कैटेगरी को। स्टार्टेड विद योर मदर, और फिर बाद में आपके ब्रदर ने भी आपको ज्वाइन कर लिया। हाँ तो जी, me and my mom started together in 2017 and my brother just joined I think 1.5 or 2 years before. तो जैसे फैमिली में सारे लोग ही काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएट आप कैसे करते हो कि अब बिजनेस का डिस्कशन हो रहा है, अब टेबल पे डिनर कर रहे हैं तो फैमिली डिस्कशन हो रहा है, मतलब कि There is no family discussion and there is no family talks. We हम्म, only have family time for 20 minutes, the time we have lunch together as a family. Otherwise, हमारी सबकी अपनी टीम्स है, हमारी कैटेगरीज है कि हम किस में काम करते हैं, हमारा क्या स्ट्रीम है, हम किस में कौन सी टीम हम हैंडल करते हैं। एवरीवन हैंडल्स देयर ओन टीम्स, so that is everyone have the different positions what we do, and everyone handles them their things only. The only thing is हम एक दूसरे से बात जरूर करते हैं, हम एक दूसरे से सजेशन जरूर लेते हैं, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जो उस टीम को या जो उस पोजीशन को हैंडल कर रहा होता है वही डिसीजन मेकर है। सो वी हैव डिवाइडेड आर आर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अस. So example, I handle the CRM team, I handle the marketing team, sorry, I handle the operations team, I handle the HR, I handle some of the sales. My brother handles finance and strategy. My mom is again in CRM with us. So हमारी जो अपनी जिस जिस जॉनर की हमारी एक्सपीरियंस है, हम सब वो लोग हम सारी चीजें वो हैंडल करते हैं। हाँ, तो देखो ऐसा तो होता नहीं होगा कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, क्योंकि हमने देखा भाई बहन आपस में कोई भी काम करते तो लड़ते तो हैं ही। तो हमारी आप वैसे भी कभी लड़ाई नहीं हुई पर्सनल लेवल पे, तो प्रोफेशनली तो बहुत अलग है। नहीं, मतलब अगर कभी डिसएग्रीमेंट आ रहा है, आपका आपस में नहीं बन पा रहा है, तो फिर आप ऐसे नहीं कि दोनों मदर के पास जा रहे हो कि मम्मी देखो मैं ये करना चाह रही हूँ, भाई ये बोल रहा है, हम Right. ये So करेंगे। these things are taken care of very professionally, and that is how we are able to, approximately grow the brand for next 300%. कि that is what I told you, हम discuss जरूर करते हैं, but at the end of the day, decision first the department head का होता है. Secondly, there is no harm in taking the chances. If I feel something very strongly, I try to take that chance, and I do take it. सो इट्स नॉट दैट कि कोई एक दूसरे को सप्रेस करता है या कोई एक दूसरे के डिसीजन को नहीं ऑनर करता, बट येस, वी ऑल व्हेन वी आर इन द ऑफिस वी थिंक फॉर द बेनिफिट एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, दैट्स इट. उसमें कहीं भी ये नहीं है कि ये मेरा डिसीजन है या ब्रदर का है या मदर का है, या कोई एक दूसरे के डिसीजन को ओवरकम कर रहा है. मे बी अगर मैं कोई सजेशन लेके गई हूँ, उनके पास कोई बेटर डिसीजन है या सजेशन है, ही गिव मी दैट सजेशन एंड आई एक्सेप्ट इट, because I also get that understanding, but that is the only thing is differentiate in the experience. मे बी किसी चीज का एक्सपीरियंस उनको अपने पहले जॉब्स में या पहले एक्सपीरियंस में आ चुका है, जो हमें समझ में आता है कि ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू गिव दैट मच प्रॉफिट. कहीं पे मेरे को बहुत स्ट्रांगली लगता है नहीं, माय सिक्स सेंस इज दिस दैट आई वांट टू फॉलो इट, देन आई गिव अ चांस आल्सो. सो दैट वेज वी आर हैंडलिंग आवर ओन डिपार्टमेंट्स, एंड टच वुड द वर्क इज रियली गोइंग वेरी स्मूथली दैट वेज. ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ स्मूथली जा रहा है, लेकिन देखिए स्टार्टअप, हम लोग किसी भी चीज में स्टार्टअप करें, सारे दिन एक जैसे तो रहते नहीं है। कभी चीजें अच्छी चल रही हैं, कभी आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया वो काम नहीं किया, या शिपिंग का कुछ इशू आ गया, आपका जो डिलीवरी पार्टनर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस वजह से लोगों के पास टाइम से प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाया। क्योंकि D2C के भी अपने अलग चैलेंजेस तो हैं ही। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस जो आप फेस करते हो या फिर आपने उनको ओवरकम किया था, कुछ वो शेयर करना चाहोगे आप? डिलीवरी टैट रिसेंटली हमारे साथ चल रहा है, बिकॉज डिलीवरी इज आवर पार्टनर, दे हैव ओवरटेकन एक्सप्रेस बीस, और बॉम्बे में स्पेशली बहुत ज्यादा डिलीवरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बट येस, वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट, वी आर ट्राइंग टू, we have increased the team who handles the logistics, we are trying to track the things. So जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम immediately उनके solutions उस तरीके से ढूंढते हैं. Yes, product R&D में, प्रोडक्ट टेस्टिंग में इट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क, बिकॉज कैटेगरीज इज मेड नहीं है, तो हमारे को हर चीज समझनी पड़ती है. पहले हमने जहाँ 2 4 5 लोगों से
प्रोडक्ट टेस्ट करा के प्रोडक्ट लॉन्च करे और हमारे को कुछ इश्यूज आए, अब हम वहीं अपने एट द बैक ऑफ द माइंड वी नो कि हमारे को यहाँ यहाँ लॉन्च करना है, तो हम अपने कस्टमर्स का डिटेल लेके रखते हैं और अब हम अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग भी अपने कस्टमर्स से करा रहे हैं, वेर इन वी आर एबल टू गेट द जेन्युइन एंड द राइट एंड द वेरियस फीडबैक्स। सो हम बहुत सारे अपने गूगल शीट्स बनाते हैं, हम बहुत सारे अपने गूगल फॉर्म्स बनाते हैं, हम अपने कस्टमर्स को भेजते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट डू दे रियली नीड एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पिंक। सो ऐसा नहीं है कि हर्डल्स नहीं आते, बट यस, हम धीरे धीरे अपने हर एक्सपीरियंस से और ज्यादा सिस्टमैटिक होने की कोशिश करते हैं, और कोई भी हर्डल आता है हम उसे और जितनी जल्दी हो सके उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, या मे बी अ सेकेंड वे आउट फॉर द सेम। ये तो ऑपरेशंस वाला हो गया हमारा। मार्केटिंग वगैरह पे आपका क्या है? क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ना, आजकल सब कुछ मार्केटिंग ही हो गया है। इवन आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपने ब्रांड्स लॉन्च कर दिए हैं, यस। तो उनका इतना बड़ा फेस खुद का ही है। मतलब मे बी शायद उनका टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन उनके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, वो अपने चैनल या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हो कि ये जो इतने सारे मार्केटिंग का खर्चा रहेगा, या फिर मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज हो गया है, तो वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? I think somehow I don't agree with you 100% because yes, face काम करता है, more than face information काम करता है। शायद कोई एक इन्फ्लुएंसर का या एक बिग फेस देके आप ड्रेस खरीद लोगे, बट शायद आप इनरवेयर नहीं लोगे या आप लॉन्जरी नहीं लोगे, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज एन इंडिविजुअल चॉइस और इंडिविजुअल्स कंफर्ट, right? So one, I mean, we are trying to give as much as information as we can. Every small question we try to answer within the reels, because ऐसे होता है, हमारे साथ भी बहुत होता है। बहुत ऐसे कस्टमर्स है जो प्रोडक्ट अबंडन कार्ट में डाल के छोड़ देते हैं बिकॉज दे हैव मल्टीपल क्वेश्चंस इन देयर माइंड and they're not हम्म। able to make up their mind that they really want to buy the product or not, or the product is really going to fit them or give them the same, the same experience what they're thinking or not. सो इस चीज में मुझे ऐसा लगता है मार्केटिंग हमारे को किसी भी चीज के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए हमारे को हमारे कस्टमर्स के बेसिस पे करनी चाहिए कि हम्म। आप जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या उनको वो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, क्या उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, और क्या आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी रील से, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, आप अपने मैसेजेस से, आप अपने पुशअप मैसेजेस से, क्या उनकी उन डाउट्स को क्लियर कर पा रहे हो, या आप अपने और कस्टमर के बीच में एक वो ब्रिज बिल्ड कर पा रहे हो कि उनको उनके सॉल्यूशंस मिले एंड दे आर एबल टू कन्वर्ट एज अ कस्टमर. So that is something I think as a brand we have really done a lot and in a good way, and we are trying to do more. बिकॉज अभी भी जब हमारे सीआरएम टीम हमारे लोगों से बात करती है, कस्टमर से बात करती है, हम हर वीक अपनी मीटिंग करते हैं, हम क्वेश्चंस जॉट डाउन करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को क्या इश्यूज हैं, हमारे कस्टमर रिपीटेडली कॉल्स पे कस्टमर्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि हम ऑलरेडी उनकी रील्स बनाएं और हम ऑलरेडी उनको सॉल्यूशंस दें. So that is something how our team and our marketing team and CRM team works together. तो मतलब आपने कभी ऐसे भी सोचा है, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि फाउंडर्स ही फेस बन रहे हैं किसी इन्फ्लुएंसर को लाने के बजाय? जैसे अगर मान लीजिए बॉम्बे शेविंग कंपनी है, तो उनका बॉम्बाई भी है जो कि गर्ल्स के या वुमेन्स के सेगमेंट में हो गया, तो वहां पे शांतनु देशपांडे खुद कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। तो आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि आगे चल के हम लोग खुद ही अपना फेस बन जाए किसी ब्रांड एम्बेसडर को ना लेके? Not आप thought as of now, but yes, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इंफॉर्मेशन वीडियोस भी बनाई हैं, प्रमोशनल वीडियोस भी बनाई हैं, एंड आई रियली फील जितना डीप स्टडीज हम लोग कर पाते हैं और जितना डीप वर्किंग हम लोग कर पाते हैं, शायद हम इन्फ्लुएंसर्स वो बेसिक्स ना करें. Influencer, I think, is a very, very good category to keep explaining the product to the customers and how to use, how to remove, how to take care, how do they look. It's a very fantastic idea. But yes, basic questions I have been answering, and I think whatever ways will come in future, I'll try and be more experiential in the same way. क्योंकि देखो एक चीज इसमें ये भी है कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे अगर आपके कैटेगरी में बात करें, शायद डायरेक्टली ओवरलैप तो नहीं होगा, लेकिन उषा कपिला ने जो अपना ब्रांड लॉन्च किया है, माइट भी हो सकता है कि आगे चल के आपके कैटेगरीज भी ओवरलैप हो जाएं। You never know. I mean, depends कि उनका अपना ब्रांड को लेके क्या फोरकास्ट है, या उनके क्या प्लान्स हैं, हमारे क्या प्लान्स हैं.
अगेन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, ऐसा नहीं है ना ब्रांड लॉन्च करने के बाद आप सेम प्रोडक्ट्स भी ला पाओ, सेम क्वालिटी ला पाओ, सेम इनोवेशंस ला पाओ. So that again depends, and it still depends. Like for me as an individual, it depends what is my future plans for my brand. So likewise, it depends what is the other person's futures for their future plans for their brand. So that completely and I think एक category में 2 या 3 competitors भी हो तो doesn't matter. At the end of the day, I think जो revolution आया है और जिस तरीके से ladies अपने आप को change कर रही हैं and they are taking care of selves, I think they are not hesitant enough to pay extra penny when they're getting the worth of it. So, and that is the Pink's focus is also that we want to be a premium mass brand wherein we are able to cater the mass but in a premium quality and giving them that premiumness and premium feel, especially being the hygiene products. So that is something what we are also focusing and what we are trying to do. So that again depends कि हर brand का क्या focus है, कि आप कहाँ कैसे grow करना चाहते हो. एंड इट इज ऑलवेज गुड कि अगर एक ही कैटेगरी में काफी सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो वो एक मार्केट भी मैच्योर होगा. राइट. जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी वैसे वैसे इनोवेशंस आएंगी. बिकॉज जितना आप लोग कस्टमर्स का फीडबैक लोगे उतना आपको समझ में आएगा कि मेरा कस्टमर क्या चाह रहा है, मेरा टीजी क्या चाह रहा है, और उनकी हम अब कौन सी नीड सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग व्हाट एवरीवन जस्ट फील्स. लेकिन एक चीज आप अगर मेरे को उस वर्क के बारे में बताओ कि जैसा हमने देखा भी है कि जो इन्फ्लुएंसर के ब्रांड्स होते हैं जब वो लॉन्च करते हैं तो एक साथ बहुत ज्यादा उनके बारे में नॉइज होता है. उनके इनिशियली उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स भी आ जाते हैं बट वो ब्रांड्स जनरली सस्टेन नहीं कर पा रहे. मे बी एक पुश तो उनको मिल गया था इन्फ्लुएंसर की वजह से लेकिन शायद प्रोडक्ट पे इन्फ्लुएंसर ने उतना कभी फोकस किया नहीं. Yes. So you answer your question yourself. What I told you, new innovations, taking the feedback of the customers, upgrading yourself is really very important. If you really want to have a stable, if you really want to have a stable business, you really need to have that, that focus. अगर आपके एक भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या कंप्लेंट है या थोड़ा सा भी कस्टमर को इशू है, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड मुझे कैसे स्विच करना है, मुझे कैसे अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और एक ही कैटेगरी में मुझे कैसे ग्रो करना है. सो यस, इनिशियली if someone has a face or if someone has money, it's not a big deal to open the business, but to keep running that business, especially that too profitable, is a very big deal. And that is something what as a brand Pink focuses on. D2C एज अ सेगमेंट आपको कैसा लगता है कि आगे चल के इसका क्या फ्यूचर होने वाला है अगर. It's a very good future because I think the lives are so busy. Take it from your lingerie to your, your even your morning coffees. If the cook is not there, you're not making it yourself. You're ordering from Zepto Cafe, right? Your all the ration you're getting for your family, your clothes, everything is online now. So I think D2C has a very, very big more opportunity to get more conversions and more orders, and D2C itself is growing as a very big business because I think the lives are so busy that everyone wants everything very quickly. And once you actually do those things and serve them at the doorsteps, is something what you are actually knocking on the right doors. लेकिन मतलब लोगों को हम लोग बहुत ज्यादा लेजी भी तो बना रहे हैं ना. फिर वो हर चीज को क्लिक करके और घर पर ही आ रही है तो वो बाहर तो निकलेगा ही नहीं. We are just accepting the revolution what is coming. That's it. ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऑनलाइन स्टोर खोल भी लूंगी एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं है कि लोग चल के उठकर आएंगे. जिसको ऑल्टरनेट ढूंढना है या जिसको ऑनलाइन ढूंढना है वो ऑनलाइन ही ढूंढेगा. एंड एज अ ब्रांड ऐसा भी नहीं है कि मैं ऑफलाइन नहीं जाना चाहती या मेरा शायद कब फ्यूचर में कोई प्लान ना बने. It again, everything depends how it comes with the time. But yes, as of now, I think D2C and especially even the quick commerce is really evolving the life because हम लोग लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम अपनी छोटी छोटी कई कई not too much priorities या not too much important things भूल जाते हैं. Like if I have to go to a party, maybe घर पहुंच के मुझे realize हो मेरे पास ये product नहीं है, मुझे अभी चाहिए. If it's available on quick commerce, it's easy. It makes my life easy. So anyways, किसी एक brand का sale तो हो ही रहा है ना, it still makes the life easy. हाँ वो तो बोलते भी है ना कि आपको चाय बनाना है, आपने पानी चढ़ाया पता चला दूध नहीं है तो आप उतनी देर में चाय चढ़ाओगे दूध आ जाएगा ऑर्डर से. Yes, it happens. It really happens even in our lives. Sometimes I get up in the morning, I realize घर में bread नहीं है, तो जितनी देर में मैं बच्चों का दूध गर्म करती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, उतनी देर में घर में bread आ जाती है.
So it is actually making our lives easy, and especially I think looking at a positive way, आप हर चीज फ्रेश भी ले रहे हो, आपको कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है. एट टाइम्स अ लॉट ऑफ वुमेन हैपेंस कि वो एक एक हफ्ते की सब्जी लाते हैं, पर जब आपको डोर स्टेप पे सब्जी मिल रही है, व्हाई डू हैव टू गेट इट फॉर अ वीक? बाय एवरी 2 days, नो. आप बाय फ्रेश ले सकते फ्रेश, हो, बात कम बाय कर रहा है. फ्रेश थिंग्स, राइट. तो जिसको जब चाहिए वो वैसे भी ले रहा है. इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हो, वन एज इन एंड द नीड हैपेंस, और इन सम इमरजेंसी, और मे बी वंस यू फॉरगेट टू कीप दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर थिंग इन हैंड. सो आप इसको दोनों तरीके से पॉजिटिवली देख सकते हो, दैट इट इज एक्चुअली मेकिंग लाइफ इजी. और ये आई थिंक अगर हम लोग देखें भी ना, कंपेयर करें, तो इंडिया में ये एक एडवांटेज है हमको. फॉरेन कंट्रीज में शायद ये क्विक कॉमर्स और ये सारी चीजें उतना एक्टिवली नहीं है. मतलब यहाँ पर रहने का शायद एक बेनिफिट ये अपने को मिल जाता है कि हाँ, हमारे घर पर सारी चीजें बहुत ही आसानी से डिलीवर हो रही हैं. हम लोगों को एक्चुअली में शुरू से एक लेजी लाइफ जीने की आदत है, मुझे ऐसा लगता है, एवरी इंडियन. एंड इट इज नॉट ओनली द द हाई क्लास और अ प्रीमियम क्लास, इवन द मिडिल क्लास. आप बाहर बट जाके आदमी देखोगे, अपने लेवल हम पे जितना कर सकता है वो कर रहा है. एग्जैक्टली हमारे को जितना हम अपने लेवल पे अपना कंफर्ट ले सकते हैं, मे बी समवन हु इज अर्निंग मोर देन मी और यू इन अ मंथ आर वॉशिंग देयर यूटेंसिल्स एंड द क्लोथ्स देमसेल्फ इन यूएस और यूके एंड कनाडा. But we are not. We want the helps. Even at a 20,000 salary person needs a help today. So it again depends in what kind of environment we are staying. That is what I'm saying. How the market evolves, how your people evolves, and how your TG evolves is completely how you have to evolve your brand as well. And how difficult it is for you, because as a mother you are managing a company, you have to manage your kids also. तो कितना डिफिकल्ट होता है कि घर को भी आपको मैनेज करना है, बिजनेस भी आप एज अ फाउंडर मैनेज कर रहे हो, उसके क्या चैलेंजेस रहते हैं? Yes, it sometimes it is very difficult, and emotionally sometimes I also go into a lot of guilt. Like summer vacations hai, kids are at home, sometimes I also don't want to come to the office looking at kids. But yes, we still manage. And yes, I think blessing to stay in India, you get a lot of help, though you just have to sit in the office and manage on calls, but it's not that difficult. Secondly, thanks to my husband, he's been very, very, very helpful to me. He's been taking care of the things, especially when I'm not there or I'm traveling, is actually a blessing to me. A good support in your family is something where you get a mental freedom to come to the office and solve the issues and work in the office. That is something I think I feel, if every husband or every man looks at the dreams of a woman and this support, it's not that only a man should take care of the things. I mean, it's a both way thing, but whatever can be managed by whom, if you walk together, if you hold hands, and if you share the duties and you do them well, I think nothing is difficult. I've stayed with my 3 months old daughter for 6 years alone. I've taken care of her. Now even my husband take care of the home at times. I try and manage the things from on the call. If things are not there, kids need something, I Zepto, I Blinkit. So a lot of different things keeps on coming, but yes, a lot of with the convenience also, you really need the support. This is what I feel. And even touchwood, my in-laws are very good that ways. They are also very supportive. They also understand, the position, the kind of work we are doing, the kind of business we are growing. So that ways, I think the home is well taken care of. तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो फैमिली सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसी वजह से आप अपना बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पा रहे हो. बिल्कुल. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत फ्रीली फोकस कर पा रही हूँ. और इन सम केसेस मान लो किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिर कैसे मैनेज करे? मैं हर पॉडकास्ट में जब मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं हर आदमी को भी बोलती हूँ, यू शुड ऑलवेज सपोर्ट योर वाइफ. एट द एंड ऑफ द डे, द मनी इज कमिंग इन द फैमिली, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी. इफ समवन वुड वांट टू वर्क, एंड अगर वो औरत खुद काम करके अपने आप को खुश रखेगी, शी इज मेंटली एंड शी इज इमोशनली हैप्पी, तभी वो फैमिली में खुश रह पाएगी. इवन वी ऑल हैव सीन अ लॉट ऑफ न्यूज कम इन. जो भी घर में विमेन काम करना चाहते हैं, उनके बाद वर्किंग रहना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, बट देन दे आर फोर्स्ड टू डू द हाउस होल्ड वर्क, मेंटली एंड इमोशनली वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं. आई फील एक इंडिविजुअल जब खुद अंदर से खुश नहीं है, वो फैमिली भी खुश नहीं रख सकता. चाहे मे बी उनका एंगर ना निकले, बट देन दैट हैप्पी वाइब और दैट हैप्पी एनवायरनमेंट कैन नेवर बी बिल्ड. सो आई फील जैसे हम लोग अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करते हैं,
in whatever best possible way we can. I think उन्हें भी करना चाहिए, because at the end of the day, I mean, everyone wants a happy family and, you know, a peaceful sleep. So when the family is happy, then I think the overall environment is happy. And I think, see, sometimes we even feel a lot of things are real in life. You know, birth and deaths are also real. And unfortunately, if someone leaves your life and someone someone dies, आप उनके बिना भी जीना सीख लेते हो. So जिंदगी सब कुछ सिखा देती है. कोई होता है आप दिल से एक्सेप्ट करते हो, कभी होता है कि कोई आपकी मजबूरी आपको सिखा देती है. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई विमेन काम करना चाहती है, एंड आई थिंक विमेन आर समथिंग हु हैज बीन ब्लेस्ड टू डू द मल्टीटास्किंग एज वेल. यू नो, आप एक टाइम पे, मैं मेरे साथ भी होता है, मैं भी 10 बार कॉल पे होती हूँ, घर की चीजें मैनेज करती हूँ. आई डू कॉल्स, आई ट्राई एंड मैनेज द ट्यूशंस, द फूड, द मिल्क डिलीवरीज, एवरीथिंग. But then that's okay. I know I have to do it, so I take out time for that, even sitting in the office. So I think everyone can manage if you want to manage. So जब वो एक हस्बैंड वाइफ में स्पेशली एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बिकॉज देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ. वो वो आपकी एक लाइफस्टाइल वैसा बन जाता है कि हाँ, यही लाइफ है, ऐसे ही जीनी है, एंड वी आर हैप्पी. एंड सिंस years I believe in this, that more than quantity time, I believe in quality time. किसी के साथ 10 घंटे बैठना और दो लोगों में आपस बात ही ना होने से अच्छा है आप 1 घंटा घर जाके अपने बच्चों को वो दो कि दे रिमेम्बर कि हाँ, माय मदर ऑल्सो प्लेज विद मी, शी प्लेज दिस गेम, she gives us time, she make me do my homework, she asks me what is my day, what was my day. A lot of time when I reach home, my daughter give me water, she asks me कि मम्मा आपका दिन कैसा था, आज आपने क्या किया, आज आपने कहाँ से बात करी, आज आपने कितनी मीटिंग्स करी. So they also understand the daily thing, you know. सो इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना माहौल कैसे हैप्पी बनाना है, और आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को कैसे उन चीजों में इनकलकेट कर कर एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना है. वो है हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हम लोग वैसे भी देख रहे हैं इंडिया बहुत ही नीचे आता है. बिल्कुल. और वो इसीलिए ये बिकॉज जो आपने क्वेश्चन किया कि लेडीज काम करना चाहती है बट उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं भी कुछ बोलेगा, दे फील इट. एंड दैट इज वाई सुसाइडल इश्यूज बढ़ रहे हैं, डिवोर्स इश्यूज बढ़ रहे हैं. मेंटल पीस नहीं है लोगों के पास, लोगों की लाइफ में शांति नहीं है, दे गेट अग्रेसिव, दे गेट शॉर्ट टेम्पर्ड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. आई एम नॉट सेइंग everywhere, but yes, it happens, and that is something what I strongly feel we all should talk about it. and हमें सबको एक दूसरे को समझाकर सबकी लाइफ में वो चीज डालनी चाहिए. सही बात है क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो ही रही है क्योंकि आपके पास वर्क का इतना प्रेशर है, आप काम Right. से प्रेशराइज्ड होके घर पे आ रहे हो, घर पे Right. भी आपको वही बात है कि कभी-कभी आपका काम का गुस्सा आपका घर में आपके बच्चों के ऊपर निकल जाता है, Right. फिर आपको गिल्टी फीलिंग होता है कि यार मैंने इनको क्यों बोल दिया और राइट. प्रेशर वो बिल्डअप भी होता फ्रस्ट्रेशन रहता ना, है. वो फ्रस्ट्रेशन बाकी चीजों से भी होती है. एग्जाम्पल, इफ आई सी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम अ फूडी पर्सन, हुँ, मुझे खाना पसंद है, हुँ, मुझे अलग अलग क्विजीन्स पसंद है. मैं अगर ऑफिस से गंदे मूड में भी घर जा रही हूँ, इफ माय फेवरेट फूड इज देयर, माय मूड जस्ट स्विच ऑफ. मतलब फूड और इज़ वहीं थेरेपी अगर ऑल्सो. मुझे थक के घर जाके खाना बनाना पड़े और मैं 4 बार सोचूं कि मैं ये चीज बनाऊं या ना बनाऊं, तो वो चीज मुझे फ्रस्ट्रेट करेगी. Everyone have their switch on and switch off, what I feel. But the other person should know. At times even happens, my husband is traveling, I am at home, and that is something, the understanding we have, that we both don't together, we both don't travel together for professional travels. So like that, everyone should have that understanding, and that switch on switch off should know. कई बार होता है आपको बच्चों के भी स्विच ऑन स्विच ऑफ देखने पड़ते हैं. एट टाइम्स योर किड्स जस्ट फेलोफाई कि भैया आज आप ऑफिस जाओगे ही नहीं, आज आप हुँ, घुमाने लेके जाओगे, आज मुझे घर पे रहना ही नहीं है, आज मुझे लंच खाना ही नहीं है, आज मुझे घर का खाना खाना ही नहीं है. सो एवरीवन हैव देयर मूड्स. सो आई थिंक एक दूसरे के मूड को समझकर उसे हम कैसे चेरिश कर सकते हैं इज समथिंग व्हाट एवरी आई मीन वी शुड लर्न. And over a period of time, I think we as a family member of 4 people have really understood this thing. And there is no good day or a bad day. I think bad day can be switched to good day, and good days are always a good experience. Every day we get a new experience, either in personal lives or in professional lives. हुँ. थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक है लेकिन आज के टाइम पे हम लोग ये देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जो बच्चे हैं उनको हैंडल करना भी पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है. Over pampering is a हुँ, very big thing, and I feel everything. I mean, see, every parent have that
imagination or every parent had that dream कि मुझे ये चीज नहीं मिली तो मेरे बच्चों को मिले, राइट? इवन आई थिंक जो शायद बचपनों में हमें चीजें नहीं मिली हमारे बच्चों को मिले। सेकेंडली वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है जो हम लोग को शायद नहीं था हमारी एज में। बट आई फील एवरीथिंग हैज टू बी एंड शुड बी गिवन एट द राइट टाइम, in the right quantity, and making the children realize the value of the same. You understand my point? बेसिक्स आजकल तो मुझे ऐसा लगता है शायद हमारे टाइम के और आजकल के बच्चों के बेसिक्स ही बहुत चेंज हो गए हैं। हमारे पास शायद 5 जोड़ी कपड़े होते थे, इनके पास 15 जोड़ी हैं। हम बर्थडे पार्टीज पे जाते थे, हमें केक मिलता था, चिप्स मिलते थे और चाउमीन मिलती थी। इनकी तो पहले 1 हफ्ता पहले कलर डिसाइड होता है भैया कि इस बर्थडे पार्टी पे कौन से कलर के कपड़े पहन के जाने हैं। टीम पार्टी हो रहा है, गिफ्ट डिसाइडेड हो रहे हैं, राइट, गिफ्ट मिल रहा है आपको। फॉरगेट अबाउट थीम पार्टी, आपस में लड़कियों के भी कलर्स डिसाइड होते हैं कि अच्छा। अच्छी फोटोज आएंगी कि तो हमारे को इन्हीं कलर के कपड़े पहन के जाने हैं। माय डॉटर ऑलवेज टेल मी मम्मा इस पार्टी में इस कलर के कपड़े पहन के जाने हैं बिकॉज वी ऑल आर वेयरिंग द सेम कलर्स। सो इट हैपेंस, बट यस, चेंजिंग विद द टाइम is important, but I feel, giving the importance of everything, even though I am running a company, but it's not that easy. I mean, I've been running this company since 8 years. For last 7 years, I didn't take even a penny as a salary. Only since last year, I've started taking some salary from the office. But that importance is, that hard work importance should be realized to the kids, even what you are working at. So, my daughter is 13-year-old. शी इज मच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मैं उसे अपने साथ इवेंट्स पे लेके जाती हूँ, मैं उसे अपने साथ, वन, उसे एक्सपोजर मिलता है, दूसरा शी रियलाइजेस कि मेरी माँ सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कैसे दो पैर पे खड़े होकर सिर्फ काम कर रही होती है। शी इवन डजंट गेट टाइम टू हैव वाटर और हैव लंच ऑन टाइम। So they understand the realization of hard work. And this is something I think is very important. I don't say we should not pamper the kids. Even I pamper my kids, but in a right way. We should always give them the life what what makes them a better person. And I don't know, I have read it somewhere, and which is just in my mind. If your kid is hating you till they are the age of 16, for the rest of their life they're going to love you, because they are only going to hate you कि आप उन पे रिस्ट्रिक्शंस रखते हो, आप उनको चीजों के लिए रोकते हो, आप उन्हें अपने हिसाब से चलाते हो, आप उनको एक उनकी रूटीन बनाते हो। बट वंस दे हिट 17 or 18, they realize the value of those things what you put in them for last 16 years. So I read it somewhere कि once your kids hates you for 16 years, they are going to love you and thank you for the rest of their lives, and this is something what is in their mind. और मुझे मुझे एक्चुअली सुन के बड़ी हैरानी होती है, बहुत ऐसी मदर्स बोलती है कि मेरे बच्चे मुझसे डरते नहीं है या मेरी सुनते नहीं है। आई इवन जस्ट कॉल माई किड्स एंड से दैट आई एम कमिंग होम, दे आर जस्ट स्ट्रेट। आई मीन, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे मुझसे डरते नहीं है, एंड इट्स नॉट कि मुझे डरा के रखना है, इट्स जस्ट वन, इट्स द रिस्पेक्ट। सेकेंडली आई थिंक द इम्पोर्टेंस, that they know the right, what is right, what is wrong, and the wrong things will not be accepted at any cost. So when they've been told this is the right, this is wrong, you need to follow the right path. So I think that, those teachings in the kids is very important, obviously depending on the, the kind of kid. जैसे मेरा बेटा हर चीज मजाक में समझता है, my daughter is very sensitive, you can't scold her, तो उसको हमें प्यार से समझाना पड़ता है, but she understands. बेटा प्यार से नहीं सुनता, उसको डांट के समझाना पड़ता है। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। बट मुझे ऐसा लगता है हम जितना अपने हिसाब से अच्छी चीजें और वो संस्कार और वो इम्पोर्टेंस बच्चों में डालते हैं, वो जरूर आती हैं। डिफरेंस है, जरूर है, हमें भी वक्त के साथ एज अ पेरेंट चेंज होना चाहिए, बट सम बेसिक्स have to be given to the kids. This is what I feel as a mother also and as a parent. नहीं, बहुत सही, आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब थोड़ा सा बिजनेस पे फिर से आ जाते हैं। हाँ जी। एम्प्लॉयज जो हैं आज के टाइम पे, और आज के टाइम पे जो एम्प्लॉयज भी आ रहे हैं वो भी जेन जी एम्प्लॉयज आ रहे हैं, और ये देखा भी गया है क्योंकि कई सारे फाउंडर्स के साथ मैंने भी डिस्कस किया है, तो उनका मानना ये होता है कि जेन जी के साथ काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। थोड़ा नहीं, बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली उन्हें हायर करना बहुत चैलेंजिंग है। हाँ। I agree. This is a very big pain point for all the businesses. But मुझे ऐसा लगता है over a period of time, the Gen Zs will also understand these things that they have to work hard.
at the end of the day what they want. You know, everything goes hand in hand. But I agree with you कि जितना हम लोगों को होता था ना कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे ये करना है, दिस इज माय टारगेट, यू नो। हमारे पेरेंट्स, बहुत ऐसे लोग थे, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे थे जिन्होंने शायद, बहुतों के होंगे कि इन्होंने एक ही कंपनी में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, यू नो, एग्जैक्टली, वहीं रिटायर भी हुए हैं। दे वहां तो यही होता था, आप सही बोल रहे हो। एवरीथिंग वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली, आई थिंक, which is not a good thought in today's life. But yes, I think जो आपने issue raise किया, this is actually a genuine issue as of now, what even we feel. But but the blessing in us is also we have a lot of people, especially the managers who've been working with either me or my brother since last three organization. Since last 10 years, they've been working for us. And I'm very proud to say this, thankfully. Uh, Not even 5 people have left my firm themselves or with a resignation. You know, either it's a performance issue, or maybe the in the packaging girl, the women have got married and they have shifted to their hometown. Otherwise हमारी company भी कोई छोड़ के नहीं जाता है, because we try and give that environment, but yes, at the end of the day you have to work. Excluding all the perks, at the end of the day the performance is important. वो तो है, मतलब कि हमारे पेरेंट्स का जो जनरेशन था, वो तो उन्होंने एक जॉब पकड़ लिया। Right. अब वो रिटायरमेंट का प्लान वहीं से करके चलते थे कि यहाँ ज्वाइन कर लिया, 40 साल बाद यहीं से हम रिटायर होंगे। Right. हमारा जनरेशन आया, उनका ये था कि एक जगह काम किया, यहाँ पे 4-5 साल का हमको एक्सपीरियंस हो गया, अब चलो कहीं पे स्विच मारते हैं। मतलब वो स्विच मारने का उनका ये था कि हाँ, पैकेज हम लोग बढ़ा के हमको Grow. मिल जाएगा, तो हम लोग Grow. मारेंगे। अब जो जनरेशन आ रहा है, उनका ये है कि यार यहाँ पे मेरा वाइफ मैच नहीं हो रहा, तो मेरे को दूसरी उससे जगह ज्यादा चला जाऊँ। प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है, एवरी स्मॉल थिंग दे हैव एन इशू। वर्क लाइफ बैलेंस के अगर आप उनसे डेफिनेशन पूछोगे, उन्हें पता नहीं है, बट देन दे स्टिल वांट अ वर्क लाइफ बैलेंस। सैटरडेज दे डोंट वांट टू वर्क, overtime they don't want to do, but they don't understand the importance of all these. The only thing is, when you are at your base, when you are at your basics, आप जितना एक्सपोजर लोगे उतना एज एन इंडिविजुअल आप इवॉल्व करोगे और आप ग्रो करोगे, जो आगे जाके आपकी लाइफ के लिए एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा, which I feel is lacking in the understanding of Gen Z as of now. I mean, I think you and me are also not that old, but still we are at the, I mean, you know, our generation is in the middle. We are seeing the Gen Z also, wherein हमें लगता है कि शायद हम गधे थे, कि इतना काम कर लिया फिर भी इतनी सी सैलरी हाइक पे भी खुश हो जाते थे। और हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा, जिन्हें इतने साल हाइक नहीं भी मिलती थी, देवर ऑल्सो हैप्पी कि भैया ठीक है, काम तो चल रहा है, नौकरी तो है, महीने का खर्चा तो आ रहा है, सैलरी तो आ रही है। So our generation has experienced a lot in everything. तो आपका कैसे डायनामिक्स रहता है आपकी टीम के साथ? तो हाउ इज योर टीम, मतलब आपकी टीम किस तरीके से मैनेज करती है सारे काम को? See, we have HODs, we have the management. सबके, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हमारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है। हम एग्जाम्पल है, CRM को कोई एक क्रिएटिव चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड स्पीक टू द मार्केटिंग टीम, आई एम गोइंग टू टेल दी HOD मुझे ये क्रिएटिव चाहिए, यू लुक कि किससे काम कराना है। सो वी हैव डिवाइडेड आवर टीम्स दैट वेज दैट एवरीवन इज एबल टू गेट द, यू नो, get that work done on time and efficiently. सो हमारी टीम्स डिवाइडेड है, HODs डिवाइडेड है, हम अपनी अपनी टीम्स हैंडल करते हैं। Every Saturday we do a group meeting of all the HODs and we discuss our good and bad, you know, what went right, what went wrong this week, and what are the improvement and the scope of improvement in the future or in the next coming weeks. So this is something what we discuss, कि अगर हमारे को किसी और डिपार्टमेंट का या किसी डिपार्टमेंट के किसी एक एम्प्लॉय का फीडबैक देना, वी गिव दैट। और अगर हमें अपनी कोई रिक्रूटमेंट चाहिए, हमें कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, वी डिस्कस दैट। बट our teams are divided as under the HODs, and everyone is handling their own teams and trying to grow the business together smoothly. So I think ये सिस्टम बनाने के बाद, जैसे मैं पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देख रही थी, तो कभी कोई काम रह जाता था, कोई टाइमलाइन रह जाती थी, बट अब क्या, अब चीजें स्मूथली हो रही हैं, टाइम पे हो रही हैं, बिकॉज उसी 9 घंटे में हर टीम अपने लिए अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रही है। So that is how we have divided our work. वो तो बिल्कुल सही बात भी है कि जितना सिस्टम्स और प्रोसेसेस होंगे, उतना ज्यादा आपके, मतलब आपको अगर डे टू डे फायर फाइटिंग में आप एज अ फाउंडर इन्वॉल्व अगर नहीं हो रहे हो, तो यू कैन फोकस ऑन बिगर विजन, मतलब कि कंपनी को एक्सपेंड करना और क्या क्या कर सकते हैं, वो आप तभी सोच सकते हो जब आपकी कंपनी ये छोटे छोटे डेली टास्क को अपने लेवल पे हैंडल कर पा रही है।
So we have morning meetings of every team, a 10 or a 15-minute meeting of every department. We do कि कल क्या हुआ, कल का क्या feedback था, आज क्या है, आगे future plan क्या है, and that's it. And then the teams keep on working and then we focus on the other plans. तो फ्यूचर विजन क्या है पिंक पोल्का का? मतलब आप आगे अपने 4-5 साल आगे और क्या क्या आपके फ्यूचर विजन है, या पिंक पोल्का को हम लोग और किस किस कैटेगरी में एक्सपेंड करते हुए देख सकते हैं? The one, obviously, Pink Polka is going to create the legacy, and there is no doubt on that. Secondly, maximum in next 3 years, we are going to touch 100 CR. We are going to be 100 CR brand. Thirdly, yes, we are looking into some other categories like expanding the breast related products category, trying to get more innovative products for heavy bustier women also. And we are trying to look into two more new categories, out of which one is again the innovation and the first time in India product. So I think in next 4 to 6 months only, we are going to enter in another two more categories. We are looking for it, but it's still at a very nascent stage. We are still under the process of procuring the staff, procuring the samples and giving the samples for the trials and all. We are still thinking on it, but yes, we are going to expand. But obviously, it's going to be for a women-centric things only, as of now. एक चीज और भी है, हमने देखा है कि जितने भी D2C ब्रांड्स होते हैं ना, मतलब कि स्टार्ट सबने ऑनलाइन किया है, बट कहीं ना कहीं सबका प्लान होता है कि यार आगे चल के हमारा भी एक ऑफलाइन स्टोर होना चाहिए, क्योंकि जब वो होर्डिंग पे या उस पे स्टोर के सामने आपका लोगो और आपका कंपनी का नाम लिखा रहता है ना, वो एक ब्रिक एंड मोर्टार वाली फीलिंग थोड़ी सी अलग रहती है। I do have this plan, but I think I need to have that much products कि मैं एक अच्छा सा showroom अपना बना सकूं. But मुझे ऐसा लगता है कि as of now, it is not a very it is not very immediate need for us because our category is actually sitting offline or online. So इसलिए बहुत immediate need नहीं है, but yes, this is something what I also personally want to do as a founder. हाँ, मतलब जैसे वो होता है ना, जैसे कि अगर हम लोग वो देखें, पारुल गुलाटी का है निश हेयर, Yeah. तो वो ऑनलाइन उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने Right. आप उनको शोरूम्स बोल सकते हो, फिर एक्सपीरियंस सेंटर बोल सकते हो। See, उनका product ऐसा है wherein you have to have that experience. Our product is something जिसमें आप experience ले नहीं सकते हो या आप product trials नहीं करा सकते हो. So again, it depends on the product category. I mean, the category and the products you are into, wherein that need is there. So I think she had that need that she has to open the stores and she has to give that experience that if I'm going to look, put a different color layer here, how will I look? Or maybe I'm going to put the fringes, how I'm going to look. So that depends on I think the product category as well, कि आपको कितना नीड है शोरूम्स में आने का या ऑफलाइन अपने स्टोर्स बनाने का, especially when it's related to sampling or giving that experiential looks. मैं करेक्ट है, मतलब कि D2C में भी हर कैटेगरी या हर प्रोडक्ट के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, मतलब कि आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, फिर आपको ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन जाना है, ट्रायल सेंटर रखना है, डिपेंडिंग अपन D2C में भी आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हो। Yes, I feel that. नहीं, यू हैव बीन वर्किंग इन दिस, तो मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो तो हेल्पफुल रहेगा ही, जो कोई नया भी स्टार्ट करने वाला है। अगर कोई नया स्टार्ट करने वाला है D2C के फील्ड में किसी भी बिजनेस में, तो एज अ फाउंडर आप 7-8 साल से इस चीज में काम कर रहे हो, आप क्या उनको एडवाइस दोगे कि व्हाट दे शुड डू? One, don't get into the cat race. Try and find a solution for a need which is not getting solved. Irrespective, it's a new category or something, but if it's a need and it is not getting solved, you will make your place. Secondly, knowing every department, working in every department yourself is very important to make the other people who are you going to employ under you smoothly. You need to have the experience of every department to understand how the department works and how smoothly you can make them work. किसी भी चीज में आपने खुद काम नहीं किया होगा, आप चीजें सिस्टमैटिक कभी नहीं बना पाओगे या आप वो सिस्टम उतना बेटर वे में नहीं समझ पाओगे. तो आपको वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अंडरस्टैंड द कैटेगरी और द प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग इनटू. आई थिंक वी शुड, इतना डिमांड है और ऐसे जनरेशंस चेंज हो रही है, ऐसे लोगों की नीड्स चेंज हो रही है. आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हाट the Gen Z might need or the Gen Z may aspire for what we are not solving at.
सो आई थिंक हमारे को उन प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करके और इनोवेशन प्रोडक्ट्स लाने चाहिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द रेड ओशन मार्केट एंड यू नो getting the A grade products and B grade products and giving more discounts or giving more I mean, giving more buy one get one or something and just make money. I think brands are not only to make money. They are to leave their footsteps and to leave their own history so that the other people who are going to get into the branding should read the book what this brand has built and how this brand was built. Yeah. I think more than building a brand and the money, that this journey is very important. Having experience every day and have running on this journey is a different kind of nasha altogether. This is what I feel. They say abhi bhi, even I'm running the business for 8 years, a lot of things I read, I understand every day, a lot of things I get to know every day. In every department we get to know, we get to learn a lot of things. Because as you said कि Instagram है, as you said social media है, वो जितनी जल्दी चेंज हो रहा है, आप भी एज अ ब्रांड उतनी जल्दी अपने आप को इवॉल्व करते हो. बट उनके साथ इवॉल्व रहने के लिए आपको वो हर स्टेप की इंफॉर्मेशन होना, हर स्टेप की नॉलेज होना और हर स्टेप को क्लाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, मतलब कि 7-8 साल में तो इंटरनेट ही एक तरीके से पूरा चेंज हो गया है. राइट, राइट. So like that, the COVID has been a blessing in disguise for us. जैसे हमने डिस्पोजेबल निपल कवर्स निकाले थे, उसके बाद हम लोग जैसे कोविड में लोगों ने और ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू किया. सो वी वर एबल टू explain the details in the in the description department why we are different and how we are different. So I think online में ये बहुत अच्छा पार्ट है. एग्जाम्पल है, there are a lot of things what are still a taboo, like lingerie buying है, lingerie accessories buying है, sand pads buying है, so a lot of other products like menstrual products के buying है. But online is the benefit is you can sit and you can read and you're able to understand different brands and what they are giving and what is the best brand for you, suitable as per your pocket and as per whatever they are solving the issues for. So I think that is something which what a quick commerce and even the D2C has really solved for people and have been helping us as a new startup also to build a brand. We are able to communicate and we are able to explain it to the customers what our USPs are and what our products are and how we are different. तो अगर शॉर्ट में आप थोड़ा-सा बता पाओ कि जैसे आप सोर्स कर रहे हो चाइना से और फिर आप जब उसको सेल कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर रहे हो, मतलब कस्टमर आपका व्हाट इज़ द फनल एग्ज़ैक्टली कि कस्टमर आगे इस तरीके से रहे? हम इंस्टाग्राम पे एड्स करते हैं, हम बहुत अच्छे-अच्छे इवेंट्स में मतलब जो हमें लगता है जहाँ हमारी मैक्सिमम टीजी आएगी, हम उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. हम अच्छे ब्रांड्स के साथ, अच्छे इवेंट्स के साथ या ऐसे फैशन शोज वगैरह के साथ सैम्पलिंग करते हैं. बट द बेस्ट पार्ट इज एवरी कस्टमर हु ऑर्डर ऑन द वेबसाइट, either a prepaid or a COD is being called every day. Every order is being called irrespective the number of the orders, and we confirm the size. We tell them the right way of using the products. We tell them if any complimentary or any other products are also supposed to be bought. So हम एक वो काम करें. दूसरा, every abundant cart customer is being called by me personally because I feel like the category is new. कस्टमर्स को सही इंफॉर्मेशन देना, सही यूजेज बताना और उनके डाउट्स क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I personally call every Instagram questions, every quick pass questions and every abundant cart customers as of now myself. So I think मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कैटेगरीज में या ऐसे ऐसे जब आपको हमारी तरीके से कोई प्रोडक्ट कैटेगरी बनाना हो, आपको कस्टमर्स के साथ टच में रहना बहुत जरूरी है. बिकॉज इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट गेटिंग थिंग्स इम्पोर्टेड. हमारी फैक्ट्रीज में हमारे तरीके से सामान बन रहा है. हम सैंपल्स लाए, उन सैंपल्स में हमें जो इम्प्रोवाइजेशन चाहिए थी, उस हिसाब से हमें जो चेंजेस चाहिए थे, हम उस हिसाब से अपना सामान बनवा के मंगवा रहे हैं चाइना से भी. इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग फ्रॉम एनी XYZ कंपनी. हाँ, सो वो तो दैट चल इज. भी नहीं पाएगा आपके वाले सेगमेंट में जहाँ पे इतना हाइपर पर्सनलाइजेशन आपको करना पड़ रहा है, वहाँ पे तो वो चलेगा ही नहीं जेनेरिक प्रोडक्ट्स. I'll just give you a small example. The C size of India is somehow an A size of China. Oh, sorry, vice versa. The C size of China is an A or mid of A or B size of India. So starting में हमारे साथ भी ये फनी एक्सपीरियंस हुआ कि हमने जो A B और जो उनका C कैटेगरी का था, हमने वो A B C के लिए निकाल दिया and that just fitted to an A cup size of India.
हमें समझ में ही नहीं आया इतनी नेगेटिव मार्केटिंग कैसे, इतनी नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है, इतने लोग, पीपल वर लिटरली अब्यूजिंग because products were also non-returnable. So after that, when we went to the blackboard and when we went to our customers and took the feedback, we understood that we need to work on the sizes. So now we are selling the right sizes as per the Indian markets, as per the Indian customers, कि Indian women की क्या breast sizes है और हमारे को किस size के हिसाब से चीजें divide करनी है. So I think to, you know, whatever country or whatever place you work on, आपको उनके हिसाब से चीजें manage करना is very important. सो अभी हम वहां से भी अगर इंपोर्ट करें तो हम अपने हिसाब से चीजें बनवाकर और अपने हिसाब से सारी चीजें मैन्युफैक्चर करवाकर इंडिया में लेकर आके हम सेल कर रहे हैं. So that is something what we are trying to do. What I don't know if any other brand is also doing or not, but we are really focusing on each and every small bit of feedback of the customers from what we get. नहीं, सही आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा. आई थिंक टाइम भी हो रहा है, तो एक दो क्वेश्चन के साथ इसको वाइंड अप कर लेंगे. एक तो आप मेरे को ये बताओ कि देखो आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, पॉजिटिव चीजें तो होती ही हैं जो हमने करी हैं, लेकिन हमको बाद में ये भी समझ में आता है कि यार हमने कुछ मिस्टेक्स भी करी थी. अगर ये मिस्टेक्स हम लोग रेक्टिफाई कर लेते तो शायद ये जो हमको इतना टाइम लगा है ये थोड़ा सा टाइम कम लग जाता है, या फिर अभी कुछ और भी हम लोग कर सकते थे. तो ऐसे कोई एक दो चीजें जो आपको लगता है कि ये मिस्टेक्स हमने किए थे, मतलब बाद में आपको उसको लर्निंग तो उससे मिला ही, लेकिन बाद में आपको समझ में आया कि हाँ ये कुछ हमने डिसीजन में मिस्टेक कर दिए थे या किसी चीज में मिस्टेक कर दिया था. जैसे एक तो आपने साइज वाली बता दिया कि ये मिस्टेक आपने, क्योंकि कस्टमर एंग्री हो गया, और एक बार कस्टमर एंग्री हो जाए तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल है. We have done the sampling of more than 3 lakh. हम्म. जितने हमारे कस्टमर्स को गलत एक्सपीरियंस गया था या प्रोडक्ट उनको नहीं समझ में आया था, हमने सबको सही साइजेस के प्रॉपर दोबारा सैंपल्स भेजे हैं, just to make the customer happy and give them that experience that yes, now the right size is there and you can try the product in the right size. बिकॉज आपके वाले केस में वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. एक Right. कस्टमर नाराज हुआ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो नहीं Yeah. खरीदेगा, Yes, and वो especially when there are बोलेगा. only the handful numbers of the brands in a particular category. और ऐसा कोई मिस्टेक आपको लगता है कि जो आपने किया था या फिर आपको मुझे बाद. ऐसा लगता है कि हमने अपनी ब्रांड अवेयरनेस और मार्केटिंग बहुत देर से शुरू करी. शायद बैक इन 2000 मे बी 2 years और पहले अगर हम शुरू करते तो आज हमारा ब्रांड और ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर सकता था. क्योंकि जब मैंने ब्रांड खोला था तो मेरा फोकस यही था कि हमें प्रॉफिटेबल बना के धीरे धीरे ग्रो करना है. बट हम ये रियलाइजेशन की इस ब्रांड की इम्पोर्टेंस कितनी है और हम एग्जैक्टली किस माइंड पे बैठे, हमारी रियलाइजेशन बहुत डिले हुई. तो जो क्विकली और जो वास्टली हमने मार्केटिंग अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले शुरू करी है, मुझे ऐसा लगता है शायद अगर हम 3-4 साल पहले शुरू करते तो आज हमारा ब्रांड एक अलग और एक बहुत ज्यादा बेटर लेवल पे होगा. और शार्क टैंक कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मार्केटिंग में? आई थिंक शार्क टैंक से आपको बहुत अवेयरनेस मिलती है, स्पेशली आपको बिलीव बहुत मिलता है. बहुत ऐसे कस्टमर्स है जो प्रोडक्ट कैटेगरी को डाउट करते हैं या उनके शायद बी ग्रेड प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, वो नहीं लेना चाहते. व्हेन यू से दैट वी आर अ शार्क टैंक ब्रांड, एटलीस्ट दे बिलीव यू कि हाँ अगर कोई शार्क टैंक पे गया है सो इट्स अ गुड नीश ब्रांड एंड दे आर मेंटेनिंग द क्वालिटी. एंड उसके अलावा आई थिंक यस ब्रांड अवेयरनेस भी मिलता है. एंड एज अ ब्रांड उन लोगों से जो हमें फीडबैक मिले वो तो एनीवेज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे हैं. आपका फेवरेट शार्क कौन है सब में से? आई लाइक अमन एंड आई लाइक अनुपम. आप एक एक लाइन में आप बता पाओ कि क्यों? I think Anupam have a very vast knowledge, and I mean what I'm very fond of watching Shark Tank पहले से भी, not even just अभी मैं गई हूँ तो, but he has a knowledge of everything and he's very quick in understanding the things. And वो इतने छोटे छोटे minor questions लेकर आते हैं कि आपके भी दिमाग में चलता है अच्छा यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था. And नहीं I प्लीज. think Aman somewhere he's very down to earth. He's a very nice person in talking. I've met him personally also in one of the shows recent. I mean, in his some speaking just for 1 minute, but I spoke to him. So the experience is very different. I mean, he's मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के साथ हम personally भी connect कर पाते हैं. Very vast experience. He's also faced a lot of failures and then he's been successful, and now he's at a place where he is able to give his feedbacks. So ऐसा नहीं कि कोई शार्क या फेवरेट है या कुछ, बट यस मुझे ऐसा लगता है उन सबकी अपने में नॉलेज इतनी ज्यादा है. एज आप अगर
एग्जाम्पल विनीता को भी देखोगे तो विनीता हैज बीन सेइंग दैट वी आर स्ट्रॉन्ग पिलर्स लाइक मी एंड माय मॉम आयरन वुमेन, बट आई थिंक उन्होंने भी जो काम किया है एंड जिस तरीके से एक ब्रांड बिल्कुल नीच से ग्रो कर कर आप जिस लेवल पे आए हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी कमेंडेबल वर्क शी हैज डन. सो आई थिंक वो अपने में ही एक ऐसी पर्सनालिटीज है जिन्होंने अपनी अपनी कैटेगरीज और बिजनेसेस में इतना अच्छा रिमार्केबल फुटस्टेप्स छोड़े हैं कि उसे कोई भी फॉलो करना चाहेगा. परफेक्ट परफेक्ट, आपने परफेक्ट सम अप किया। और एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, फिर इसको हम लोग वाइंड अप कर देंगे। जैसे कि जनरली हम लोग देख रहे हैं कि जो भी स्टार्टअप्स हैं, अगर एनसीआर में हम लोग देख रहे हैं कि नोएडा से बन रहे हैं या फिर गुड़गांव से बन रहे हैं। सॉरी. जो स्टार्टअप्स हैं मेनली, या तो वो नोएडा में लोग, मतलब जो स्टार्टअप्स हैं या तो नोएडा में है या फिर गुड़गांव में है। आप शायद फरीदाबाद से ऑपरेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कहाँ है, बहुत जगहों से है, ऐसा तो नहीं है. नहीं मतलब मैं वैसे, हाँ, मतलब मैं फरीदाबाद में कम होंगे, बट फरीदाबाद आई में टेल यू समथिंग, वी born and brought up in Delhi only. I mean, we are, me and my brother are born and brought up in Delhi only. हाँ मतलब ऐसा कि जब आप नोएडा या गुड़गांव को, लोगों को ज्यादा पता है, मतलब कि कोई बाहर अगर आप पहुंचोगे तो नोएडा गुड़गांव हर Because एक को पता है। हाँ, फरीदाबाद या गाजियाबाद उतना लोगों को नहीं पता, because जैसे मैं एक गाजियाबाद तो ऑपरेट कर रहा हूँ। इंडस्ट्रीज एंड देयर ऑफिसेज ज्यादा है. आई थिंक बिकॉज नोएडा एंड गुड़गांव में इंडस्ट्रीज ज्यादा है एंड इवन ऑफिसेज ज्यादा है एंड देयर आर मोर हाई रेज्ड बिल्डिंग्स, तो वहां पर जेंट्री वैसी है, मुझे ऐसा लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन. तो एक फाइनल क्वेश्चन और लेंगे और फिर इसको एंड अप कर लेंगे कि हाँ जी. जो आपका ब्रांडिंग है, आपने बोला कि आप अपने शायद ब्रांडिंग पे थोड़ा सा आपको फोकस करना था, वो आप नहीं कर पाए। तो आप क्या प्लान कर रहे हो, मतलब कि आप अपने ब्रांडिंग को कैसे ग्रो करने का सोच रहे हैं। ब्रांडिंग पे नहीं, ब्रांड मार्केटिंग पे. ब्रांड मार्केटिंग, ब्रांडिंग एग्जैक्टली। तो वी हैव बीन ऑलवेज, यस, ब्रांडिंग तो वी हैव ऑलवेज बीन नॉकिंग ऑफ इन द बेस्ट. तो ब्रांडिंग में नहीं, ब्रांड मार्केटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि हमने ब्रांड अवेयरनेस में और मार्केट करने में थोड़ा सा डिले कर दिया. बट नाउ वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन ऑल द screws and we are tightening all the screws and we are just doing the 360-degree marketing everywhere. Wherever possible, wherever we feel that we have our TG, we are trying to go there and speak to our, give them the right solutions, give them the right knowledge. Now we are trying to do everything what is possible with us. एक लास्ट मैसेज जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मतलब आप समराइज करना चाहो उसको तो। Be at your best, have mental peace, and yes, do something in life for yourself as well. If you have that power, I think the whole universe will follow you and everything will come into the place. Just have that believe in yourself. And I think everyone can do anything in life. परफेक्ट है, मतलब इतना अच्छे से वाइंड अप आपने किया है, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला। Thank you, Amit. Thank you. आपके टाइम के लिए भी थैंक यू, अमित जी.